everyone. Hello everyone. I welcome you to my online class. In this class, I will be talking about group theory by explaining introduction and properties of First group of all, by examples. I am So defining let's start. some numbers. These are the notations of group, and 1, 2, 3, and so on is the set of natural number. Second one is I or J or sometimes Z. All these are integer set of integer. And the third one is Z plus. Sometimes we will use Z plus. This is your denotes the set of विजिबल है सभी को, ये दिख रहा है ना? ठीक है फिर ओके. Z plus is the notation of set of all non-negative integer. And the fourth one is E. Basically we will use is positive integer set of positive integer. And the next one is Q, which is known as M by N. क्या बेटा? ओके, अब आ रही है वॉइस और स्क्रीन में विजिबल है? ओके. सो प्लीज अपनी स्क्रीन अपने आप से ध्यान रखो कि शेयर मत करो. So all the M and N belongs to Z, and the condition is N which is not equal to 0 is the set of rational. And the next notation is set of real numbers. And the next one is positive. Sorry, rational number galat bol diya. This is real numbers. And in this group theory, we will use the different notation R star. It means real numbers without zero. Similarly, if I am talking about integers with star, it means I am taking here integers without zero. अगर स्टार किसी के साथ नोटेशन है, it means I am not including zero here. So all these are the notations. The one more is complex numbers. Notation is xc, and we will define it as x, where x and y belongs to the real number. Iota is the value is -1, the set of complex numbers. All of you are familiar with these numbers. So defining with group, first of all, I am telling you about the binary composition. What is the definition of binary composition?
So this is your binary composition. A mapping. Suppose we are defining here a mapping star is S cross S. All these are same set with Cartesian product S cross S2. The resultant value will be in the set S is called a binary composition. किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं? ऑन द सेट S. Okay. Or where S cross S is the ordered pair element AB. All these elements AB belongs to the set. And we can say the image of an element that is AB belongs to S cross S under the operation is usually written as A star B. Basically, this is your binary composition. Some example of binary compositions are here star your binary operation. It may be addition, it may be subtraction, multiplication or division. If I'm talking about addition and multiplication, you can see addition and multiplication are binary operation for किसके लिए होते हैं? Okay, any other? A plus B belongs to A and A dot B belongs to N, and the all AB belongs to N. So I am talking here about the natural number. So all the addition and multiplication are belongs to the natural number. Okay, the next one is if I am taking the operation is subtraction. First one, A is supposed to and B is 3. Is it a binary operation? Anyone? How many? How many says yes? Okay. I'm taking subtraction. Look at this. 2 minus 3. The value is minus 1. Minus 1 belongs to 10. No. So this is not a binary, isn't it? देखो अभी कुछ लोगों ने कहा कि नेचुरल नंबर्स के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है. अगर मैंने A2 लिया या कुछ भी लिया आपने नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट आपका लेसर है नेक्स्ट वन से, तो ऑलवेज वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. सो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा या नहीं? ओके, फिर ठीक है. एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा बट सब्ट्रैक्शन के नहीं होगा. ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स किसके लिए? एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए बाइनरी ऑपरेशंस
सेटिस्फाई करेंगे, बट किसके लिए नहीं, सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फॉर इंटीजर्स। n is defined m plus n plus 1 where m and n belongs to z, where star is a binary composition in the set of odd integers. But what about even integers? Anyone please tell me if this operation is satisfied for odd integers, but what about the even integers? Anyone can define? देखो हम क्या ले रहे हैं, m और n, मैं पहले लिख देती हूँ। ओके, कुछ लोगों को आइडिया नहीं है, फिर भी मैं, अगर हम क्या बात कह रहे हैं, m और m स्टार n क्या है हमारे पास, m प्लस n प्लस 1, और हमारे पास कंडीशन क्या है, हम m और n डिफाइन कर रहे हैं ऑड इंटीजर्स के लिए, तो इस केस में तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, इट मींस बाइनरी कंपोजिशन हमारी बन रही है। अगर हम ले रहे हैं इवन इंटीजर्स, बट वी आर टेकिंग even integers, so here m, suppose you are 2 and n is 4, both are even, but m star n, it means 2 plus 4 plus 1, then the resultant value is 7, which is odd integers. So this is not a binary operation. If we are taking even integer, in this case this is not a binary operation, so we can write in this case this does not satisfy the property of binary operation, so this is not our binary operation. The third one is, suppose a star b is defined as a plus b minus ab, and the all values of a b belongs to the integers. So star is your binary composition for integers. So is this a binary composition or not? Again define करो और मुझे बताओ जरा। कोई बता रहे? बाइनरी को होगी ना। अब इस केस में क्या है, इंटीजर्स आपके पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो सारे आपके क्या करेंगे, सेटिस्फाई के। सपोज 3 star 4 is defined as 3 plus 4 minus 3 into the resultant, so all belong to z. One more, this is minus 2 plus 5 minus 2 into 5, the resultant value is 3 plus 10, that is 13. This is also belongs to z. So these are the examples of binary operation. ओके, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ के आए थे इसके लिए। सो अब हमारा मेन स्टार्ट होता है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के लिए आपको बाइनरी ऑपरेशन आना चाहिए।
ठीक है, और सेट्स के डिफाइन, क्योंकि हम डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे विद सेट एंड बाइनरी ऑपरेशन. सो look at the definition of group. In the previous lecture I am already explained कि basically all the group theory, yeah, groups is a structure, abstract structure. So we are defining here the structure of group. So this is your main definition of group. And is this visible? Okay. A non-empty set. Always we are taking G with a binary operation या binary composition star is called. हाँ, मे बी शायद बेटा नेटवर्क का इशू हो सकता है. ओके, मेरी भी कनेक्टिविटी. Okay, I'm repeating again. This is the definition group. Here I'm taking non-empty set with a binary composition star is called a group if the following conditions are satisfied. And the first one is this is your first condition. The name is this is closure law. What is closure law? A star B belongs to G for all A comma B belongs to G. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हम मेरा एलिमेंट A और B G से है तो इनके बीच में जो हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, ठीक है, वो गिवन होगा. ए और बी के बीच में जो भी बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर रहे हैं वो एलिमेंट किसका होना चाहिए? सेट का ही होना चाहिए, जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल्स में किया. ठीक है, बाइनरी कंपोजिशंस के लिए. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिविटी. व्हाट इज एसोसिएटिविटी? A star B star C, this is equal to A star B star C for all A, B and C belongs to the set G. इन दो प्रॉपर्टीज में किसी को कुछ डाउट है? किसी को भी? है ना, आप लोग अगर ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हो तो बेटा मेरे को क्लियर होना चाहिए कि आपको इस प्रॉपर्टीज में, क्योंकि बार बार रिपीट होंगी. ठीक है, अगर इन दो प्रॉपर्टीज में किसी को, तो हम आगे बढ़ते हैं. The third one and most important property, existence of identity. What is identity? It means there exists an element E belongs to G such that A star E or E star A which is equal to A for all
A belongs to G. The most important line is the existence of element of E. अगर E आपका एलिमेंट G में है ही नहीं और हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हम आइडेंटिटी कैसे डिफाइन करें? तो जो हम आइडेंटिटी ले रहे हैं वो सेट का एलिमेंट होना ही चाहिए, तभी हम ऑपरेट करें कि ए जी के किसी भी सेट की बात करें, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो अगेन हमें वही एलिमेंट मिले। तो एडिशन के केस में आप देखते हो कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट में 0 ऐड कर लूं तो अगेन क्या आएगा? सेम एलिमेंट आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 एक ऐसा नंबर है, आप उसको कितने ही उससे मल्टीप्लाई करो अगेन क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सो कभी ऐसा हो कि सेट में 0 और 1 ना हो तो उस केस में हमें चेक करनी है कि हमारी आइडेंटिटी डिफरेंट कैसे है। एग्जांपल्स के थ्रू मैं अभी बताऊंगी कि 0 और 1 के अलावा भी आई की आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, इट मीन्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that A star E or E star A which is equal to A. And the next one and the last property of our group, existence of inverse. For each A belongs to G, there exists an element. What is A dash belongs to G such that A star A dash or A dash star A which is equal to E. यहाँ आपको ध्यान रखना है, जो आपकी सेट की आइडेंटिटी आई है ग्रुप के केस में, जो आपने आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट किया है, इनवर्स क्या होगा? जो आप ए का इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो उन दोनों को ऑपरेट करने पर जो प्रीवियस आइडेंटिटी आई है प्रीवियस स्टेप में वो उसके इक्वल होनी चाहिए। सो ई इज द आइडेंटिटी जो हमने किससे डिफाइन की है? G3 से। जो प्रीवियस आइडेंटिटी है उसकी इक्वल होनी चाहिए। सो इट मे बी A dash, sometimes we can write A minus 1, you can write it as A inverse which is equal to A inverse A which is equal to E. तो डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस, नोटेशंस डिफरेंट मिलेंगे, बाकी 4 प्रॉपर्टीज जो ग्रुप की है वो सेम यही है। ठीक है, दिस इज द मेन डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। सो वी कैन राइट a group G with respect to the binary operation star as G comma star. This is the notation of group. सपोज अगर मैं एडिशन की बात कर रही हूँ, यहाँ G क्या है आपका? सेट, स्टार क्या है? ऑपरेशन। इट मे बी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड multiplication. It may be real number, natural number, integers, positive integers, rational numbers, complex number and so on. ठीक है, सो अगर मेरी जो डिफाइन करना है रियल नंबर्स फॉर एडिशन, सो मैं कैसे लिखूंगी? रियल नंबर्स फॉर एडिशन, रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर्स फॉर एडिशन, इंटीजर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो
This is your operation and first is the symbol for set. यहां तक क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है कुछ डेफिनेशन से? प्लीज अगर किसी को डाउट है तो अभी पूछो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. यस, अगर किसी को डाउट है तो मोस्ट वेलकम, पूछो अभी. हाँ हाँ, नोटेशन है किसी भी ग्रुप का, इसीलिए मैंने कहा ना जी और स्टार. तो जी आपका क्या फर्स्ट क्या है? सेट. और स्टार क्या है? ऑपरेशन. हाँ बोलो बेटा. G3 जो क्या है, जो हमने आइडेंटिटी जो ऊपर से हमें डिफाइन की है ना, देखो ये स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है कि ग्रुप की फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या नहीं. यानी कि क्लोजर एग्जिस्ट कर रही है तो एसोसिएटिविटी पर जाएंगे. एसोसिएटिविटी सेटिस्फाई कर रही है तो हम उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे. व्हाट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ दैट सेट. आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी तो फिर हम क्या करेंगे, उस सेट का इनवर्स. उस सेट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स. सपोज आपके पास 2 है तो 2 का इनवर्स क्या होगा? 1/2 बोलोगे. तो उस केस में आइडेंटिटी क्या आई? 2 और 1/2 को मल्टीप्लाई किया आपने तो क्या है? 1 आया. तो 1 बेसिकली क्या है? आइडेंटिटी है ना. तो प्रीवियस चीज में हमने क्या फाइंड आउट करी? आइडेंटिटी. अगर आपका सपोज इनवर्स आपका गलत आ रहा है तो आप चेक करो कि ऑपरेट करने पर जो आपने आइडेंटिटी डिफाइन की थी उसकी इक्वल है या नहीं. मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये. मोस्टली बच्चे क्या है, जब ग्रुप थ्योरी पढ़ते हैं तो इस चीज को कंफ्यूजन होता है कि आइडेंटिटी क्या है और मेरा इनवर्स क्या है. तो हर केस में हर एक एलिमेंट का इनवर्स निकालना पड़ेगा. अभी जब हम एग्जाम्पल से आते हैं तो और एग्जाम्पल से भी क्लियर होगा आपका कि हमने कैसे डिफाइन किया. ठीक है. किसने पूछा था अभी? नाम भी जरा मुझे बताते जाओ तो मुझे अभी सभी का. अच्छा ओके, अभी ठीक है. कोमल कुछ पूछना चाह रहे हो? कोमल बोलो बेटा. चलो ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. हाँ जी बेटा. हाँ हाँ, होगी होगी, वो एग्जाम्पल के टाइम पर बताऊं. 0 और 1 के डिपेंड करेगा ना हमारा सेट. सपोज 0 है ही नहीं सेट में, है ना, और हम आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो वो पहले मैं तुमको वो उस तरह के सेट्स डिफाइन करना बता दूं तभी हम उस आइडेंटिटी पर आएंगे. ठीक है. 0 और 1 के अलावा हो सकती है और आप देखोगी होगी भी. ओके. नेक्स्ट इज डेफिनेशन 2. A group G is called finite और इनफाइनाइट. अब यहाँ ग्रुप की बात कर रहे हैं कि हमारा ग्रुप फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट according as it's contain a finite or infinite number of elements. All these are infinite set. नेचुरल नंबर्स कैसे हैं? इनफाइनाइट. अभी मैंने इनको ग्रुप नहीं डिफाइन किया है, ठीक है, जस्ट नोटेशन बताया है. मुझे नहीं पता ये ग्रुप बनाते हैं भी या नहीं. जस्ट नोटेशन के लिए मैंने यूज किया है कि आर मेरा कोई रियल नंबर है और प्लस उसके ऊपर ऑपरेशन है. अभी मुझे ये एग्जांपल चेक करना है कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं. ठीक है. दिस इज ओनली द नोटेशन ऑफ ग्रुप. अब आर आपका नंबर कैसे है? आर में रियल नंबर्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट. सो दिस इज योर इनफाइनाइट सेट. दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट. ऑल दीज आर infinite sets.
सो आवर ग्रुप इज इनफाइनाइट, बट वो ग्रुप बन रहा है या नहीं वो भी हम अभी हमने चेक नहीं की है, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये बताना है कि इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, तो जो सेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका सेट फाइनाइट है तो फाइनाइट ग्रुप, और अगर आपका सेट इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ग्रुप। क्लियर है ये सभी को? ओके। द थर्ड, किसी और की भी ना वॉइस आ रही है, अगर किसी ने अपने आप को अनम्यूट किया हुआ है तो प्लीज म्यूट कर लो। जिसको प्रॉब्लम है वो ही अपने आप को अनम्यूट करके बोलो। रिकॉर्डिंग भी बीच में स्टॉप हो गई। अच्छा, सेकेंड डेफिनेशन क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट आवर ग्रुप इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। जी ऑलरेडी हमारा कोई ग्रुप है, यानी कि हम जी की जो सारी प्रॉपर्टीज है वो सेटिस्फाई कर चुके हैं। बट जी में जिसके ऊपर आपने डिफाइन किया है वो सेट अगर आपका फाइनाइट है और इनफाइनाइट, वो डिपेंड करेगा सेट पे। सपोज मैं ले रही हूँ यहाँ पर जी कोई सेट डिफाइन कर रही हूँ, द एलिमेंट्स आर 1 2 3 एंड 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, ओनली 4 ही है, और मैंने इसको चेक कर लिया था कि ये मेरा ग्रुप बना रहा है, तो उस केस में इसको बोलूंगी फाइनाइट ग्रुप। और अगर मैं रियल नंबर्स की बात कर रही हूँ तो रियल नंबर्स मेरे पास कैसे हैं, ये ऑलरेडी चेक कर चुकी हूँ कि मेरा ये ग्रुप बना रहा है, उस केस में इसको बोलूंगी मैं इनफाइनाइट ग्रुप। अभी मैंने आपको करके नहीं दिखाया है कि ग्रुप कैसे ये सारी प्रॉपर्टीज इस रियल नंबर्स पे सेटिस्फाई की है या नहीं, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज डेफिनेशन इज, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कि आपको अपने मतलब टिप्स पे याद होनी चाहिए कि ग्रुप क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप क्या है, और दिस इज योर अबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। दिख नहीं रहा होगा ना अभी? अबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप। यहाँ हम कह रहे हैं ए ग्रुप G and star is called abelian और कम्यूटेटिव। मैं यूजुअली अबिलियन वर्ड यूज करूंगी, ठीक है, उसको कम्यूटेटिव और अबिलियन दोनों बोलते हैं। सो मैं जिसे जनरली यूज करती हूँ तो वो किससे होता है, अबिलियन। तो आप लोग भी जरा याद रखेंगे कि हम इसकी बात कर रहे हैं, कब होगा उस केस में, इफ द कंडीशन इज, इफ ए स्टार बी और बी स्टार ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए, इक्वल फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। अगर किसी ग्रुप में अगर ए और बी को इस सीक्वेंस में ऑपरेट करें, ए स्टार बी and the next value is b star a, if both the values are equal, in this case G is known as abelian group. Okay, so अब next one more definition, okay, examples करते हैं, definitions अभी बाद में करते हैं, और examples of group. If I am taking the example integers for addition, ठीक है, यहाँ I मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट है इंटीजर्स,
किसके लिए ऑपरेट करें? एडिशन के लिए। बताएगा कोई ग्रुप बनाएगा या नहीं, और उसके इसमें आइडेंटिटी और इनवर्स क्या होगा? ट्राई करो। पेन और रजिस्टर लेके बैठे हो ना? इनवर्स क्या? हाँ, माइनस। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी लोग देखो, मैं थोड़ा रफली करके दिखा रही हूँ। आई मैंने क्या लिया? इंटीजर -3 -2 1 2 एंड सो ऑन। अब रैंडम कोई भी नंबर ले रहे हो, ठीक है? 2 प्लस -2 2 प्लस 3 क्लोजर, क्योंकि यहाँ हमें कोई जनरल फॉर्म नहीं दी है या ऑपरेशन भी डिफाइन करके नहीं दी है। यहाँ सिर्फ हम डिफाइन करें। ए एलिमेंट दिया इंटीजर से, बी एलिमेंट इंटीजर से लिया, दोनों की वैल्यू क्या है? जो भी रिजल्टेंट वैल्यू आ रही है, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आई। हमें काउंटर चीज ढूंढनी होती है, वो एग्जाम्पल देखना होता है नंबर्स जो उस केस में बिलोंग ना करें। एवरी टाइम it satisfies the property of closure. Similarly for associativity. And the next one is, I'm talking about the identity of any element of integer. If a is the element of integer, so what will be the identity of this a? A, here operation is defined as addition, so 0 will be the element जो हमें क्या देगा? अगेन 0। यहाँ में ये सपोज ये लिख लो, a प्लस e इट गिव्स a। और अगर मुझे e फाइंड आउट करनी है तो e विल बी a माइनस a, दैट इज 0। तो आइडेंटिटी क्या फाइंड आउट हो गई मेरी? 0। ओके। सिमिलरली फॉर इनवर्स, मैंने आपको डेफिनेशन में लिखाया a प्लस a इनवर्स हमें क्या दे? आइडेंटिटी दे, और आइडेंटिटी मेरी क्या है? 0। तो इस केस में क्या हो गया? a inverse which is equal to minus of a. So here the identity is 0 and the inverse is minus a. So you can write it as I plus e is a group where 0 is the identity and minus a is the inverse element. Inverse element of a belongs to I is minus a is also belonging to I. अगर मुझे abelian चेक करना है, इज दिस abelian ग्रुप और नॉन abelian, a star b, sorry, a plus b which is equal to b plus a। चाहे 2 plus 3 करो, चाहे 3 plus 2 करो, ऑलवेज क्या होगी? रिजल्टेंट वैल्यू इक्वल आएगी। so I plus is also an abelian group और कम्यूटेटिव। ये जो लोग अबेलियन से भी फैमिलियर, गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग, ठीक है, करेक्ट कर। क्लियर है सभी का? है किसी को डाउट? डेफिनेशन बार बार एग्जाम्पल्स करेंगे हमें, ये चैप्टर पूरा इसी पर बेस्ड है। एनीवन प्लीज? अगर किसी को नहीं समझ में आया और अगर आ गया तो चेक करो रियल नंबर
for addition and rational number for addition. एंड थर्ड आपको चेक कर है इंटीजर फॉर मल्टीप्लिकेशन. देखते हैं कितने लोग निकाल के बताते हैं. पहले रियल नंबर फॉर एडिशन. सेकेंड ईयर समझ में आ रहा है? कोई है स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आ रहा? अच्छा, पूरी क्लास ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लिया था? अटेंडेंस ले रही मैं? ओके. और कोई? मल्टीप्लिकेशन किसके लिए बता रहे हो? ओके. क्या है? ओके. तो क्या 1/a आपका सेट में है? इंटीजर है 1/? तो ग्रुप कैसे बनेगा? है ना, यही तो चीज चेक करने की है. हाँ. Your condition is both the elements belonging to the set. If our set is integer and the operation is multiplication, in this case, the inverse element does not belong to the set. So you can write all the are abelian group. ग्रुप तो ऑलरेडी हो गया. तो अबिलियन की चेक करोगे तो ये अबिलियन भी है. इन दिस केस स्पेशली इम्पॉर्टेंट है z dot is not a group since inverse will not exist. That is, if z ये लिख लेते हैं. If 2 belong to z but 2 inverse that is 1 by does not belong to z. So this is not a group. One more. अभी बहुत सारे एग्जाम डिस्कस करने हैं इसके. इफ आई एम टेकिंग. हाँ जी बेटा. हाँ, बाइनरी. अब हम बार बार बाइनरी ऑपरेशन नहीं चेक करेंगे बेटा. बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर पर ही खत्म हो गया होता है ना. अब ग्रुप के लिए तो मुझे ये 4 प्रॉपर्टी मेरे माइंड में होनी चाहिए. बाइनरी ऑपरेशन आपको डिफाइन करना आना चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन अगर मैंने ऑलरेडी दिया है, ठीक है, इट मीन्स वो डिफाइंड है उस पर. डेफिनेशन में कहा ना मैंने, इफ जी बी एस एट एंड स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, इट मीन्स वो डिफाइंड है उस पर. ठीक है. सो अगर मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप. फर्स्ट, वी आर चेकिंग क्लोजर इज सेटिस्फाइड और नॉट, and the second is associativity. All the elements satisfy the property of associativity. And the next one is the existence of identity. It means the identity exists or not. And the fourth and the last one property is inverse of any element. Inverse exists or not. If G be a group, then we are talking the abelian group.
यू नो कि द डेफिनेशन हमने डिफाइन की है, इफ जी एंड स्टार बी ए ग्रुप, इट इज कॉल्ड abelian group if a star b belong is which is equal to b star a। यानी कि जी मेरा ग्रुप ऑलरेडी है, एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाएगा तो वो अबीलियन हो जाएगा। इज इट ओके? Isn't it or not? सेकेंड ईयर प्लीज रिप्लाई करो बेटा। कोई है जिसको नहीं समझ में आ रहा अभी? है ना, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी क्योंकि आपका मेन स्टेप्स है स्टार्टिंग। आज के लेक्चर्स में हम बहुत सारे एग्जांपल्स, मे भी शायद एक दो लेक्चर्स और लगे हमें एग्जांपल्स करने, क्योंकि ये आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट मैंने अभी इसलिए छुड़वा दिया कि आप डेफिनेशंस कंटिन्यू करो, ग्रुप समझो, फिर हम उस पर सिमेट्री पर आएंगे। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल चेक करें, नेचुरल नंबर फॉर एडिशन। तो इज दिस या ग्रुप होगा? इज नॉट ए ग्रुप। ओके, तो हम लिख दें इज नॉट ए group with explanation why this is not a group, as the as the condition is g3 g.3 and g.4। ये मेरी थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी है, आर नॉट सेटिस्फाई। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिख सकते, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी लिख सकते हैं इज नॉट ए ग्रुप, वाई वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ आइडेंटिटी एंड इनवर्स। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी लिखो, बट आपको एग्जामिनर को एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि व्हाई दिस इज नॉट ए ग्रुप। एंड फॉर नेक्स्ट एग्जांपल, नॉन जीरो रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक ये भी कर लो, रियल नंबर्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, दोनों के केस में चेक करके दे। है नहीं, उससे पहले जो बोल रहा था वो बोलो। हाँ, आर नहीं है, क्यों? अच्छा, ये दृष्टि ने बोला है। अच्छा, जो दृष्टि ने बोला है वो बिल्कुल ठीक है। जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन था वो वापस चेक करें, आर रियल नंबर्स की बात करें, ठीक है। आइडेंटिटी जीरो तो है, बट इनवर्स क्या है? जीरो का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। so r star, it means non-zero real number for multiplication। for multiplication is a abelian group। ठीक है, so r star is a abelian group, but r is not a group। ठीक है, इस केस में आइडेंटिटी क्यों है? वेयर वन ए, हाँ नहीं सॉरी, आइडेंटिटी के बाद वन इज द आइडेंटिटी and the inverse of a
इज 1/a। ठीक है, अभी ये है किसी को कुछ और डाउट? समझ में आ गया है आर स्टार और आर का? ठीक है, ये सारे कितने थे? इनफाइनाइट ग्रुप। अगर मैं बात फाइनाइट की तो हम एक फाइनाइट ग्रुप ले, सपोज दिस है G which is equal to 1 and minus 1 is a abelian group of order 2 under the multiplication of real number। ठीक है, यहाँ मैंने एक नया वर्ड लिख दिया है, दिस इज ऑर्डर 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सपोज Z है 1 2 3, so order of G which is a equal to 4। It means the order of group, number of elements in a group is called the order of group। यहाँ मैं ग्रुप के ऑर्डर की बात करें, एलिमेंट के ऑर्डर में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, यहाँ एलिमेंट्स, दीज आर द एलिमेंट एंड दिस इज ग्रुप। किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं वो उस ग्रुप का ऑर्डर है। ठीक है, चेक कर सकते हो 1 और -1 के लिए। क्लोजर, क्लोजर चेक करो। 1 इंटू माइनस, दो ही एलिमेंट्स हैं, है ना। 1 इंटू -1 इज -1, तो बिलोंग कर रहा है जी में से। लिख लेती हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी बोल नहीं रहे हैं, तो कहेंगे हमें समझ ही नहीं आया मैम। तो जी इज 1 एंड -1, तो 1 into 1 is 1 belongs to G, -1 into -1 -1 into 1 and 1 into माइनस, हर केस में क्या हो गया, G को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और कोई केस पॉसिबल है जो मैंने मिस कर दिया हो, है ना। एसोसिएटिविटी सेम चेक कर लोगे, आइडेंटिटी। अच्छा चलो, एक एक इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज बता देती हूँ इसमें, दैट इज कैली टेबल। कैली टेबल, जब हमारे पास फाइनाइट ग्रुप्स हो तो हम कैली टेबल कैसे बनाते हैं, उससे हम बार बार ये सारे, यहाँ हम लिखते हैं ऑपरेशन, यहाँ हम लिखते हैं फर्स्ट एलिमेंट और ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये हमने किस में लिख दिया, रो में, यहाँ हमने कॉलम में लिख दिया। ठीक है, सब लोग ध्यान से देखना। कैली टेबल से हमें क्या है, बार बार ये सारी चारों प्रॉपर्टीज चेक नहीं करनी पड़ती ना, कि हम एक एक पे जाए, एक कैली टेबल बना लेंगे और देख लेंगे कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ आपने लिखा ऑपरेशन, यहाँ फर्स्ट में लिखा आपने जो आपके एलिमेंट्स हैं उसी सीक्वेंस में लिखने हैं, और इधर कॉलम में भी।
सो फर्स्ट को यहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट एलिमेंट से, इसको फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट करोगे जो ऑपरेशन आपको गिव है। तो 1 into 1 इज 1। हाँ जी बेटा, अभी दिख रही है? बाकी सब लोगों को दिख रही है? इल्मा तुम्हें नहीं दिख रही बेटा? हाँ ठीक है, बाकी सबको दिख रही है ना? अच्छा, देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट लिया था मैंने, 1 को फर्स्ट एलिमेंट से ऑपरेट किया, ये क्या आया 1। 1 को अगेन -1 से ऑपरेट किया, यानी कि जो जो ऑपरेशन आपको गिवन है दैट इज -1। इस 1 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट -1 को 1 से ऑपरेट किया, -1 को -1 से ऑपरेट किया, दैट इज प्लस। यहां तक आ गया समझ में? ठीक है, तो अब आप देखो जो रिजल्टेंट आए हैं 1 -1 1, ये सेट के एलिमेंट्स है, कहीं बाहर तो नहीं गए? So this is the one more example of finite group. If you have the elements of 1 and -1, look at this. This is the group G, where we have the elements 1 and -1. So how we can find, how we can satisfy all the properties of group? Look at this Cayley table. How we can make this Cayley table? In the set, given the operation is dot, so write your dot operation is here and write your elements in a sequence. So first element is 1 and the next one is -1. In this column, put this first element is 1 and the next one is -1. So our operation is multiplication. So 1 is multiplied by 1, so resultant element is 1. So 1 is multiplied by 1, so resultant value is -1. And the -1 is multiplied by 1, so resultant value is -1, and similarly this is 1. So all these elements are of the set, so you can say it satisfies the property of closure and associativity. So now the next property is identity. So what about the identity in this Cayley table? So check where is your identity element, that is 1. So in the first row, so 1 is here and 1 is here, and in this column 1 is the only elements. When we multiply this 1, it gives 1 and it gives again -1 in the sequence of set. So 1 is our identity. And how we can find the inverse of this 1 and -1? So we have already circled this 1. So when we operate 1 to 1, so it gives 1. So identity is 1 for inverse is 1, and inverse of -1 is, when -1 and -1 is operating, it gives 1. So inverse of -1 is -1. So this is our Cayley table. One more example for Cayley table. If you have a group G, when we have the elements 1, -1, iota and minus iota. In this group we have 4 elements and the operation is multiplication. So how we can make this Cayley table for this group? So here I am writing the operation, that is multiplication, and all the elements in this row, that is 1, -1, iota and minus iota. In the column again 1, -1, iota and minus iota. After operating, it gives all these elements. So most important thing is how we can find the identity. So for the identity, look at all these elements. So 1 is the only elements. When we multiply this 1, -1, iota and minus iota, it gives all these elements in the sequence. 1 first is -1, 1, -1, iota and minus iota. One more thing, if you see कि मे बी आइडेंटिटी -1 होगी, तो -1 से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ऑल दीज एलिमेंट्स तो आ रहे हैं साइड्स के, बट उस सीक्वेंस में नहीं आ रहे जिस सीक्वेंस में हमारे पास एलिमेंट्स हैं. सो जब भी हम कभी आइडेंटिटी की बात करते हैं तो लिखते हैं कि A.E विच इज इक्वल टू A.
सो 1 इज द ओनली एलिमेंट्स. जब हम किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन वही एलिमेंट्स हमारे पास आएंगे. सो most important चीज, the next property is inverse. How we can find the inverse? By Cayley table. So 1 is the identity. Mark all the 1 elements in the row. So first is 1. When 1 is operating 1, so inverse of 1 is 1. The next one is, where is 1? When minus 1 is operating by minus 1, it gives 1. So minus 1 inverse is minus 1. Similarly, iota is multiplied by minus iota, it gives 1. So inverse of iota in this case is minus iota, and minus iota is multiplied by 1, so it gives 1. So minus iota's inverse is iota. Oh, I hope this is understandable for you.